Assalamu alaikum Pakistan and welcome back to the One to One podcast. It's been a huge delay since I've released an episode. I've just been waiting for some good events to happen, and finally the event happened, and I have two very special guests with me. No one other than the living legend himself, Coach Ehtisham Kareem, and no one other than the gangster of Pakistan MMA. This guy just came off a win on ARY Warriors, dominated his opponent throughout the entire fight, and basically this guy is maybe the most underrated fighter in Pak MMA's history. He's the first Pakistani to fight at Brave Championship. This guy makes people quit inside the octagon. No one other than the giant Haider Farman. Guys, it's an honor having you today on the podcast. Pleasure. It's a pleasure to be here. And I'm just so excited. I'm just so hyped. This has been a long time coming. And when I asked Haider, should I have Coach Ehtisham? He's like, yes, please have him on as well. मैंने कहा, okay, good. Because I know the synchronization, I know the duo. Okay, I interviewed you back 4 years ago when Haider fought at Lahore Brave, and तब भी आपने मुझे बोला था कि Haider student नहीं है, Haider मेरा भाई है. तो उससे मैं समझ गया था कि the investment and the love between you two is extreme, and it's never ending. So Haider, पहली बात, ARY Warriors coming off a huge win on national television. How did it feel? मतलब कि going into the fight, before the fight, what were the emotions like? Bro, अंदर जाने से पहले तो सही था, तब तक सही कॉन्फिडेंट था, सब कुछ था. थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वो मतलब उस माहौल में दोबारा जा रहा था. लेकिन जब फाइट के अंदर गया तो ब्रो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, सच्ची बात है. तो जो फाइट की जो वीडियोस जो कुछ टाइम पहले आई थी वो मैंने देखी तो मुझे हल्की फुल्की याद आ रही थी कि वो मैंने ये भी किया. बाकी ब्रो फाइट के बाद तो मतलब सही डिसअपॉइंटेड था. I saw that कि you were very unhappy after the fight. क्यों? Reason क्या था? क्योंकि ब्रो जिस तरह की परफॉर्मेंस में शो करना चाह रहा था उस तरह का नहीं हुआ ब्रो. क्योंकि अंदर जाके मतलब मैं ऑटो पायलट पे था बिल्कुल, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था सच्ची बात. मतलब ये कि मतलब मुझे याद ही नहीं मैंने क्या किया है. जो मतलब मसल मेमोरी में जो कुछ था वो हुआ है, वरना मतलब Nothing else happened. अल्लाह के हवाले. But मैंने देखा था कि first two rounds were very competitive, coach. The last round, Haider absolutely dominated him. People say it's more about the damage, ठीक है, कि how much damage the other opponent inflicts on other guy. लेकिन in my eyes, Haider clearly won. I was very shocked, and I also saw that you were also a bit worried. When the the scorecard and the judges were announcing the scorecard who won, मतलब कि were you guys really not sure कि क्या सीन था कि उसमें एक एक्सपेक्टेशन का मयार होता है, आपका अपने लाइन रखी होती है कि यार इतना तो कम से कम होगा. Because you gotta have like a good plan and then some contingencies. The best of the best भी जहन में रखना होता है और अपना worst of the worst भी जहन में रखना होता है. So when he's fighting, he's gonna go through both of these things. Some of his partners are bigger, heavier than him. They make him feel the worst when they're like doing MMA. Some of his partners, like he goes through like hot knife through butter. So वो दोनों experience वहाँ पे हो, तब हमको वो चाहिए था. तो we were just fighting on that last straw. तो टेक डाउन अटैक्स और जहाँ पे इसने जो स्ट्राइक थी वो उसने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के हिसाब से उसका ज़्यादा था, इज़्ज़त खान का वॉल्यूम था. बट डैमेज एक चीज़ होती है और डैमेज दिखना चाहिए. विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होती है डैमेज के अंदर वो बड़ी लाजमी होता है. दैट्स द सेम रीज़न आपका जो कॉर्नर, इफ इट्स अ गुड कॉर्नर, दे गोना, इफ बीच में राउंड में हो, राउंड ऑफ हो गया है, इफ आई एम अ गुड कॉर्नर, आई एम गोना कम, मैं तुम्हारे बाल शाल सेट करूँगा, तुम्हारा मुंह शू धुलाऊंगा, उसके बाद आई एम गोना सेंड यू टू द नेक्स्ट राउंड लुकिंग गुड. इफ द फाइट डज नॉट फिनिश, इफ द फाइट गोज टू अ डिसीजन, आई एम गोना मेक श्योर दैट आई गिव यू दैट मेक ओवर. You know what I'm saying? अगर मैं और तुम एक जगह पे खड़े होते हैं, you've got like बाल ऑल बने हुए फ्रेश और मेरे मुंह पे जख्म है और मैं यूँ नीचे बैठा हुआ हूँ. Even if I beat the shit out of you, लोगों को क्या दिखता है कौन जीता है, जजेस को क्या दिखता है कौन जीता है. बिल्कुल. So judging is a subjective thing. उसमें कोई ऐसा उसमें कुछ general guidelines होती है, बाकी सब कुछ subjective होता है. So इसलिए वो जो है ना वो pressure वो tension मेरे ऊपर भी था. But मुझे एक चीज़ जो है ना अंदर थी, confirm थी कि यार इसने तीसरा जो राउंड है पूरा का पूरा, और पहले और दूसरे राउंड के अंदर भी ऐसे इंस्टेंस थे जहाँ पे इसने उसको सही डैमेज दिया था. और वो डैमेज जिस तरह से वो शुरू में अटैक कर रहा था, मार रहा था, उस चीज़ को जो है ना वो कम करता जा रहा था, उसकी जो इसके ऊपर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था. बट एट द सेम टाइम बिकॉज इसने कहा कि वो ऑन ऑटो पायलट और वो दिख रहा था मुझे, यूजुअली आई वुड स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड डूइंग शिट एंड सेइंग समथिंग कि यार राइल अप द पर्सन. इस दौरान मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज विद हिम आई नो दैट even if I don't say anything, बिल्कुल full autopilot पे let's just say सुन है, उसको कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या चला, and he's damaged as well, he's still gonna give me something.
So एक आध दफ़े मैंने इसको बीच में बोला कि हाथ ऊपर करना, बाकी he took some like really hard clean overhands and hooks. Yeah. I just wanted to see him like go like that once. He didn't. And you have a chin, man. मतलब I saw the shots. अब मतलब normal बंदा खाए तो वो गिर जाएगा. And Heather, as you said, that maybe he's the smallest one in the gym and he's facing all these bigger guys, these featherweights, lightweights, Najm, the middleweight, and I've seen the sparring videos. And he's always up against them, always. क्या सीन है मतलब स्पेशल एक्सरसाइज है जबड़ों की या कि इतना सख्त सीन हुआ है? बस ये अल्लाह ने गिफ्ट दिया है मुझे। अब क्या कह सकता हूँ। उसकी एक रीज़न है, वो ये है कि चिन होता भी है लोगों का बिल्कुल, बट अल्टीमेटली जितना हमें पता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू मार्शल आर्टिस्ट को, वो ये कि नफसियाती तौर पर अगर आप, और फिर जो है ना उसकी फिजियोलॉजिकली, इफ आई क्लोज माई आइज इफ यू थ्रोइंग अ पंच एट मी, सो दैट्स अ साइन दैट आई एम मेंटल साइन आई एम गिविंग माई ब्रेन दैट यार आई एम नॉट रेडी टू टेक दिस। सो जैसे ही पड़ेगा हो सकता है नॉकआउट में उसके 30% कंट्रीब्यूशन हो, बाकी 70% मेरे अपने दिमाग का होता है। So if I already like somehow in my subconscious I expect you to hit me and I know that I'm gonna get hit and then I'm gonna hit you back. Yeah. It's like then things get a bit different. Autopilot basically. Autopilot भी, but लेकिन वो आपके अंदर ये तो आपके सरिश्त में आपने डालना होता है। अच्छे लोग जो है जब तक वो ठीक है, नहीं थके हुए हैं, they're gonna look you in the eye, they're gonna take good shots. The moment you damage them, they're not the same anymore. और damage का पता कैसे चलता है? Like he took many shots. How do I know that my guy was not damaged and the other guy was damaged? How does anybody know? If you hit me with a punch, even if it doesn't drop me, that's fight over. लेकिन मैं जिस तरह से बढ़ रहा था, मेरे तुम पर हमला करने की, बढ़ने की शरह को अगर वो कम कर देता है तो भाई आपने मुझे डैमेज कर दिया। You know what I'm saying? True. That's what not what फिर grappling का सीन था कि ग्राउंड के ऊपर तीसरा राउंड में, दूसरा राउंड में भी I specifically like I was yelling, और लेफ्ट राइट से कुछ बॉयज भी कह रहे थे कि go for an armbar, go for this, और मैंने फिर उनको फिर जो है ना मैंने सलवाते सुनाई कि just STFU, let me do my job. Hey, no submissions. Exactly. I didn't want him to go for submission. लास्ट राउंड में सर मैं जाने वाला था जब मैं माउंट पे गया था, और वो तो शुक्र आप और आपकी और शेर आलम उस्ताद की आवाज़ है मुझे आई है कि मतलब नहीं जाना सही। मुझे एक दो गालियाँ एक सुनाई दी, फिर मैंने कहा नहीं And अब तुम क्लियरली सारी चीजें सुन सक रहे हो। मतलब ये मुझे याद है, मतलब मुझे ये चीज़ क्लियरली याद है कि ना मतलब आखिरी राउंड में जब मैं, क्योंकि ना उससे पहले भी मैं मतलब सबमिशन में गया था दूसरे राउंड में, उसने मुझे सही स्लैम किया और मैं सही फिसल रहा था ब्रो। तीसरे राउंड में भी ये था, मतलब मैं अब ये था कि मैं थका हुआ भी था, मेरे दिमाग में ये था कि बस जल्दी मुक जाए फाइट ना, तो जल्दी ख़त्म करनी। तो मैं उसमें भी मैं जब माउंट पे गया और मतलब जैसे ही माउंट पे गया ना मतलब दो तीन स्ट्राइक्स के बाद मैं आर्म बार के लिए ही जाने वाला था। Because उसका हाथ ऊपर था, नहीं was grabbing it. Was there a specific reason कि you didn't want him to go for a submission? Yes. Just to inflict more damage? पहले राउंड में मैंने देख लिया था कि एक दो जगह पे जब ये उससे कॉर्नर वाले साइड पे गया, तो I don't know if they did a good job with cleaning that place, because मैं खुद भी जब खड़ा होता था sort of slipped there. Yeah. So एक स्लिपेज का बड़ा इशू होता है। दूसरा पीरियड अगर ये पहला राउंड में जब ये सही like he was strong and fresh as shit, और जब इसका ट्रायंगल if he's picking up and slamming him, because he did a couple of mistakes, इसके पास वही half second था, he tried to like cling to the triangle rather than like changing an angle and like hooking a leg or hooking the body. वो करता तो वो सवाल ही पैदा नहीं था, but then again वो half a second, so I was like I didn't want to submission. Arm bar is one thing. Usually people what they do is, अभी तक पाकिस्तान में MMA का जो है ना जुजित्सु बहुत आगे चली गई है, स्ट्राइकिंग भी बहुत आगे जा रही है, किक बॉक्सिंग जा रही है, माशाल्लाह बॉक्सिंग आगे जा रही है। MMA अभी तक हमारे दिमाग में it's like this. Yeah. I can clearly see कि छोले किधर है और वो ग्रीन वाला कौन सा है। It's not like that. You gotta make it like water, like a juice. It has to like blend in, और उसके लिए separate चीज़ें हैं। So the idea of going for a submission from a top position and sitting on your ass and pulling an arm bar, you just sacrificed position. और अगर आप थके हो, what if the other guys done it like, और most of the time वो ये करते हैं, वो इतना energetic था कि he could, उसका mount escape shit था, वो निकल नहीं पा रहा था, और उसके बाद obviously his mount pressure, his maintenance was good. So why not stay there for the rest of the round and throw elbows? Exactly. And those elbows were the one that like opened him up and like swallowed his face and everything. Oh, I wish 3.5 minute का carnage था वो. I wish I could have been there to see it, यार. ऐसी fights is what a person lives for. पता है, especially fanatics like us, Yes. कि day one से देखते आ रहे हैं. अच्छा Heather, why the delay in your comeback fight? And why not Brave? Bro, Brave दरअसल जब लास्ट फाइट मैंने अपनी लड़ी थी, उसके बाद ये सीन था कि मुझे इस साल में एक फ़ाइट मिल रही थी। तो ये सीन था कि मतलब मैं चाह रहा था कम से कम मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहा हूँ, मतलब साल में कुछ नहीं, 2 या 3 फाइटें तो हों मेरे पास। तो उनके पास जो रोस्टर था उसमें उनके पास इतने बंदे नहीं थे और मतलब मुझे फ़ाइट्स नहीं मिल रही थी। तो इसलिए उस टाइम पे ये तकरीबन कोरोना से आने से कुछ टाइम पहले की बात है ना सर, ज़्यादा नहीं, कोरोना स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले की। तो जब मैंने उधर से बड़ी मुश्किल से उधर से रिलीज़ मिला मैं ब्रेव से, फिर मैं 1FC के लिए उसमें जा रहा था, के लिए ट्राई कर रहा था।
फिर जैसे ही मुझे उधर से रिलीज़ मेरा कोरोना आ गया, तो फिर उस वजह से NFC के लिए तो हम जा नहीं सके। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं, इधर से कुछ फाइटें लड़ लेते हैं। उसके बाद फिर मेरा घुटना ख़राब हो गया, ओके, उसका एक मसल टीयर हो गया था। ये मुझे नहीं पता था। तो उसमें मैंने बेवकूफ़ी है कि मैंने कहा चलो कुछ टाइम बैठ जाऊंगा, खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो और ख़राब होता गया। तो उस वजह से बस वो मेरा मतलब चितियापा ही था। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद फिर मैंने रिसेंटली फिर ये सर्जरी कराई। फिर मैंने कहा चलो अभी इधर से दोबारा। अच्छा, you had surgery as well? Yeah. Okay. तो फिर मैंने बस अभी दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट। But how do you feel after coming off a 3-round fight? Ready to go again? हाँ bro, एनी टाइम। And anytime. वाह, शेर आदमी। फिर उसके बाद now what is the main goal now? How often do you want to fight? अब कोविड ने तो कोच हर चीज़ की माँ बहन करके रख दी है। कितने इवेंट्स इधर होने थे, कितनी चीज़ें होनी थी, वरना I believe Heather would have fought 2-3 times आराम से in this entire, all the fighters. तो what's next? Do you want to still keep on competing in local MMA shows? या आप सोच रहे हो कि नहीं, now अब 1FC का टाइम है, ब्रेव का टाइम है? ब्रो मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि ना 3-4 एक और में इधर फ़िलहाल लड़ूँ, ठीक है, ताकि केज के साथ वो दोबारा ना मतलब कुश्ती हो जाए इस तरह, और फिर थोड़ा रिकॉर्ड भी थोड़ा मतलब बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये कि फिर ब्रेव या 1FC वो लोग फिर वो खुद आराम से मतलब मुझे बोलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, you're on a 3-fight या 4-fight winning streak? 3-fight winning streak. That's a good winning streak. That's a very good winning streak. But I think पाकिस्तान में कोई top fighter अभी तक they might, except Najm, they might not be on a 3-fight winning streak, and which is a huge achievement. Now I want to talk about आपकी और आपकी कोच की relation, which matters the most. I've been seeing you fighting at Blue Area rooftops, G10 के gyms में, and now covering, you know, in the biggest MMA promotion जो Brave आई पाकिस्तान में, now at ARY Warriors. So what's your emotion like, you know, going through a fight and with coach Ehtisham especially? कि how, मतलब coach ज़्यादा investment आप करते हैं, मतलब you have to control your emotions while training Heather, because at the end of the day you're sending him to war and he's, you know, your beloved. So what are the emotions like for you? I'm going to first of all apologize for this constant coughing. No, I no, shouldn't it's have okay. drank that cold water. So पूरा दिन ऐसे मैंने वो इसके लिए क्या परहेज किया, and that was one mistake I made. पर यार emotions आपके साथ involve होते हैं with pretty much everyone. That the guys that spend a lot of time training with me, अब तो माशाल्लाह टीम इतनी बड़ी हो गई कि कुछ ऐसे लड़के जाके लड़ते हैं कि जिनको शायद आज से 1.5 साल पहले कोई क्लास करवाई थी, और उसके बाद like, you know, because the rest of the guys are doing such a good job. So, but with him, yes. And the simple sole reason is that I've been blessed with a lot of people जो मैं कहता हूँ वो करते हैं inside the gym, obviously technically, because they put their faith and belief in me. So because of that faith, I try to give them my best, and I try to outdo myself. I make sure that I'm updated more today as compared to yesterday या पिछले घंटे से. You know, forget about a month or year. That's my responsibility. और जो चीज़ उन्होंने experience की है वो उनसे याद दिलाता हूँ, कुछ point across करने की बात करने की कोशिश करता हूँ, या किसी और के तजुर्बे से. Because a wise man, you know, you don't have to fall in the ditch to, you know, experience करने के लिए जिसमें गिरना बुरा है. Yeah. You hear about it, you should look at next time. If I see something like that, I'm not going to step into that shit. So as a coach, that's my responsibility. Because eventually, fight में के साथ जो अब हुआ नहीं है वो जाके किसी न किसी level पे होना. Because we don't have a record of putting our guys in front of fodder. ठीक है, हमारे लड़कों को कोई feed करने की हमारी आदत नहीं है. Matchups at worst या at least even होते हैं. ठीक है, otherwise हमारी history है कि guys have always fought, you know, the bigger shark, the bigger dogs. ठीक है, that's exactly why हमारा रिकॉर्ड जितना ज़्यादा है ना वो पैडेड और बहुत ज़्यादा वो जो कहते हैं ना हैवी हाई होना चाहिए, नहीं है, because you know कब तक छुपा के रखोगे. I can go 8-0, 9-0, even 10-0 by fighting cans. Eventually that 11th is gonna be a motherfucker, and then he's gonna whoop you. दूध का दूध पानी का पानी आपका हो जाएगा. और वो biggest stage में फिर आपके साथ आप जितना ऊपर जाके नीचे गिरेंगे तो वो उतना आपके लिए रिकवर मुश्किल होगा. True. So again, to summarize it, इसके साथ ये था कि among all of those people that listen to what I say, he probably does it the most. Not like in his life, but when it matters the most. Yeah. When he's sparring, when he's rolling, when he's fighting. Every day. Like, I don't care if he drills what I tell him to not go karta hai nahi, lekin I do see that when he fights, it's bad with like, which is autopilot, but it was still, if it was somebody else on autopilot, they would have been like swinging bombs and tired themselves out even more. Ya wo freeze ho ke kuch karte hi. He not only took his shots cleanly, that he didn't like, you know, flinch, no nothing.
और फिर उसके बाद जो फेंका, it was crisp shots. The Yeah. jabs that hurt him the most. The jab Yeah. cross, the jab cross hook. This is as best as it can get. True. ठीक है, the flashy shit doesn't work. So he does that. तो उस वजह से obviously when he goes in the most, मेरा उसके ऊपर जो है ना ज़्यादा, I feel like there's like more at stake for me. और to put it one way like that. और दूसरा फिर ये होता है कि obviously I'm more excited to show the world that you know what we've got in store for Yeah. them. Yeah, कितना मेहनत पीछे put in कर रहे हैं. So yeah, it's good. हर बार इसको देखना लाजमी नहीं है. This time I knew it was going to be a rough ride because काफ़ी अरसे बाद आता है. Yeah. Rust is a thing. Yeah. And Izzat Khan is not like, he's not a peanut. Yeah. You know, the guy's a hard worker. He's an Yeah. athlete. He's an amazing athlete. बहुत अच्छा gymnast भी है. अभी well rounded भी है. लड़कों से लड़ा है वो. But again, there's levels to this. और फिर eventually जाके you have to dig deep in. Yeah. True. So yeah. अच्छा कोच, अब you know पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स, थैंक लॉर्ड दैट इट्स ग्रोइंग, पहली बात, ठीक है. एंड सेकेंडली मैं बहुत पाक एमएमए की खिचड़ी बन गई है बहुत गंदे तरीके से. मैं कोई पेज देख रहा हूँ, मैं दूसरा पेज देख रहा हूँ, किसी ने कोई फेडरेशन शुरू कर दी है, किसी ने कोई एसोसिएशन शुरू कर दी है, KPK की अलग, पंजाब की अलग, सिंध की अलग. ये चीज़ जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स को, ये फिर ये बात कहीं पहुँचने नहीं देगी, ये फाइटर्स को भी ये चीज़ कहीं पहुँचने नहीं देगी. वो उधर ही फंसे हुए आएंगे, वो अपने ही बंदों से लड़ेंगे, वो कि आपके बंदों से लड़ना नहीं चाहेंगे, 100 इश्यूज बीच में आएंगे. अब व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट कि मतलब व्हाट शुड हैपन? एक फेडरेशन बनाओ जिस तरह बाकी मुल्कों ने बनाया हुआ है, सब ने बनाया हुआ है, या यही खिचड़ी में आप लोगों ने खेलता रहना है? अच्छा, उसमें लेट्स क्लियर वन थिंग ना शुरू में. फेडरेशन एक कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड होता है एसोसिएशंस का. So if me and you want to form a federation, you know, Pakistan's Federation for Podcasting, Yeah. we gotta have an association in pretty much पहले तो every province, फिर हर province का हर district के अंदर हमारा जो है ना कोई club या कोई बंदा काम करना चाहिए होता है. Basic आपने पूरी national presence दिखानी होती है. तो associations मुख्तलिफ बनना अच्छी बात है. आप हो सकता है कि वो सारी associations एक ही federation की तरफ काम करें, but as per my knowledge अभी से पहले पाक एमएमए जो थी, जिसका भी था, अभी भी हम लोग जो है ना उसको उसका फ्लैग बेयर करते हैं, हम उसको जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं. वो एक तरीके से इट वाज नॉट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान सो टू स्पीक. मतलब वो सिर्फ ऐसे एंटिटी नहीं थी, उसकी कोशिश थी, उसको करने की कोशिश की थी. वो मुझे या याद नहीं है या मुझे सही नहीं पता कि आई रिमेंबर साइनिंग डॉक्यूमेंट्स अच्छा, एज लाइक यू नो वन ऑफ द, उसके अंदर जो है ना अहदेदारान में से उसके अंदर थे. बट उसके बाद उसका फिर कुछ बना नहीं. ऑब्वियसली उसका बहुत सारा जो है ना वो जिम्मेदारी बशीर ने अपने सर पे उठाई हुई थी. तो जब वो ऑफ स्टेशन चला गया, जब ही जॉइंड 1FC एज एन एम्प्लॉय, तो उसके बाद फिर यू नो 9 to 5 जब आप हो जाते हैं, फिर वो भी लाइक एक ऑफ कोर्स इस तरह की कंपनी की, तो फिर ऑब्वियसली आप कितना टाइम दे सकते हैं, राइट. तो उसके बाद एक दौर कराची में दे, वो जस्ट अ ब्लडी जोक टू पुट इट लाइक वेरी सिंपल. कुछ लोगों ने मिलकर, बिकॉज यहाँ पे इफ दे हियर दैट देयर इज अ 1-to-1 यू नो पॉडकास्ट, कल इसका ये मिल जाएगा तेरे को कहीं पे पिंडी में या कहीं और खाने वाले में आपको इसका कॉपी मिल जाएगी. बिल्कुल. सो दे हर्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड दे जस्ट डिड समथिंग विद द वर्ड मिक्स्ड. दैट वाज बुलशिट. उसका कोई वजूद नहीं. इट्स ऑन पेपर. उस तरह की 2-3 और है. रिसेंटली अभी कुछ एसोसिएशंस बन रही हैं. इफ यू फॉलोड, इफ यू सीन द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस इन द कंट्री, जिसके अंदर आई एम नॉट गोना नेम और स्पेसिफाई एनीबॉडी, लेकिन बहुत सारे कहूँगा पुराने जो लोग जिन्होंने इस मर्जी, लेट्स जस्ट से कि चल लेट्स जस्ट फकिंग नेम देम. देयर इज जलील भाई पाकिड़ो के. देयर इज फाइट फोर्ट्रेस. ठीक है, जो पुराने जो लोग इसी तरीके से लेफ्ट राइट पे हमारे बाद जो लोगों ने शुरू किया, दूसरे तीसरा है. सो सारे वर्किंग बंदे उन्होंने मिल के इवेंचुअली जो इत्तेहाद अलाइंस बनाना चाह रहे थे हम, वो ऊपर वाले का करम है कि वो बन गया. दैट यूजुअली इट वाज लाइक ओके, इफ आई वाज अ वर्किंग गाय, a money guy would approach me who didn't know jack about the game. He had his own perspective, his own vision, and his own understanding of things, you know, of marketing. एक बड़ा लफ्ज़ हर जगह पे फेंका जाता है और monetization बार-बार फेंकते हैं लोग. So उस तरह की चीज़ें होती हैं. As people who are actually doing shit on the ground, that's like secondary for us. That's going to happen when the system is put in place and when everybody's doing their bloody job responsibly. Otherwise, there's none of that. You know, the rest is just you're just pissing in the sand. So अब ये हो गया जाके change के martial artists working with martial artists. We put aside our differences, made an alliance, और अब हम साथ काम कर रहे हैं. अब उसमें पुराने लोग हैं जो OGs हैं, फिर उसके बाद उससे जो नेक्स्ट जनरेशन है, फिर जो है ना, फिर अभी उनकी जो है ना Gen Z है. ठीक है. सो अब आ रही है, लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं. ये मेरे ख्याल से खुशाइन बात है. एंड ऑफ कोर्स लाइक
every good federation, every good idara needs people with good finances. Yeah. उसके बगैर नहीं काम True. चलता. 100%. Am I going to, are you going to expect anything from the government of Pakistan at this moment? Never. I don't want to sound like an asshole, Yeah. but I'm a Pakistani. Yeah. इस्लामाबाद में रहते हुए भी, ऑल्दो इस्लामाबाद पाकिस्तान नहीं है, लेकिन हमें बाकी पाकिस्तान का देखा हुआ हालत पता है क्या हालत है. सो इन हालत में एथलीट्स का कभी कभार डिमांड करना नहीं गलत है, बट कभी कभार बहुत ज़्यादा जो ओवर हो जाता है ना, और दैट्स जस्ट अनरियलिस्टिक. Yeah. व्हेन यू हैव गॉट इतनी गुर्बत, व्हेन यू हैव गॉट हेल्थ सिस्टम जो है ना पता नहीं किस गटर में है आपका सही बात है. एजुकेशन सिस्टम की जो है ना वो उसका बुरा हाल है. ठीक है, कुछ नहीं, आप आपकी स्टेट और आप लोग एक पेज पे नहीं हो कि आप लोग रिलीजियस हो या आप सेक्युलर, आपने क्या करना है, आवाम को किस रास्ते पे आपने डालना है. यू नो इट्स अ हॉज पॉच. Yeah. ऐसे में मैं गवर्नमेंट से क्या डिमांड करूँगा. एंड दैट वाज द मेन रीज़न दैट मी एंड सुल्तान बिफोर वी फॉर्म्ड दिस शुरू में, एंड व्हेन बाद में आतिफ आया, गाजी आया, हमारे जो पार्टनर्स, उनको भी हमने कहा कि ain't no talking to the government shit. ain't no begging them and shit. Maybe ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो हम साइड पे काम कर सकते हैं, and if the government is interested, want to do it, good, but we're not going to do it. And the reason was हम लोग अपने हाथ से खुद करके कमाना चाहते हैं जितना कर सकते हो. And अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने काम का, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी उठाओगे तो everybody would want to work Exactly. with the serious people. So that's what's happening with one of these federations these days. I'm pretty sure there's more they're going to unravel about it. Maybe हो सकता है I've blabbered more, but I don't give a shit. Yeah. So That's the mentality. ये सीन है फेडरेशन का, लेकिन होनी चाहिए. बट एक और बात, फेडरेशंस को लेके, फेडरेशंस कवर द एमेचर एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट. द प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट इज नॉट कवर्ड बाय फेडरेशंस, एटलीस्ट नॉट अभी तक तो नहीं, अगले 20-25 साल 50 साल भी नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा. द वे द सिस्टम हैज बीन सेट अप. प्रोफेशनल एमएमए की बात करता हूँ, ऑल्दो एमेचर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आपस में गठजोड़ है, यहाँ से वहाँ जो है ना वो होता है. और एक को जिन्होंने स्टार बनाया ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप वालों, एमेचर वालों, तो वही स्टार कोशिश होती है कि जो है ना उसकी डिमांड बढ़ाए, उसको वहाँ पे वो लोग डाल दें, एंड देन यू नो मेक हिम फाइट कैन्स एंड पैड एंड a typical fight business. What was I talking about? The federation now. Oh yes, and the federation. Yes. This is. I'm going to tell you the reason later, after the podcast. This is why I wanted to have you here. I knew that this was the right dude. You give me all the straight answers because, of course, अब आपको पता है कि MMA प्रमोट कम करने कितने कम लोग हैं करने वाले. अब we all want answers. मतलब मैं भी रात को सोते सोच रहा था यार ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही. एक a ship is sailing smoothly and then someone adds weight, it drops down. बहुत इस तरह issues आ रहे हैं. खैर, let's fuck it for now. अब coach, yesterday an Instagram post of yours went viral. ठीक है, you're asking women to use guns because of the protection. And Pakistan में you're hearing every day you're hearing a story which is extreme than the one you heard yesterday. So what's your take on all of this as a mixed martial arts living legend in Pakistan, as an instructor, ठीक है, for such killers like Heather? What would you suggest these women to do? सबसे पहले तो मैं जो गन वाली स्टेटमेंट थी उस पर कुछ बात करना चाहूँगा. You gotta understand. I'm not saying I know everything or anything, but कोई बंदा अगर किसी फील्ड से रिलेटेड है, वो एटलीस्ट सीरियस है अपने काम के साथ. I've never said anything about this thing before. अभी आके बोला और उस पर एक रिएक्शन भी आ रहा है. उसकी वजह, and I wanted to like clear that, and this is just a blessing in disguise कि मुझे आके इस प्लेटफॉर्म पर मौका मिल रहा है. I do understand and know कि हमने अपने माशरे को सेंसिटाइज कैसे करना है, अवेयर कैसे करना है, या उनकी जो है ना मेंटल जो उनकी क्लेंजिंग है वो कैसे करना है कि जहाँ पे कल को वो कहता ना कि अकेली खातून जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं, कि वो मेंटालिटी ऐसा नहीं है कि वो नापैद है हमारी सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो आम हो जाए. You know, you shouldn't have like to been with like some intelligent people, या ज़्यादा स्कूल में पढ़ा हुआ, या बहुत ही कोई आपने जो है ना कोई किताबें पढ़ी हो. लाजमी नहीं है कि आप ऐसा एक आम इंसान होने की हैसियत से भी इंफॉर्मेशन के इस दौर में इतना तो आपका डेवलप हो जाना चाहिए यार. True. नहीं है तो बस आप फिर एक्सटिंक्ट हो जाओ. समझ रहे हो? बिल्कुल. तो देयर इज़ अ प्रोसेस, एडवोकेसी है उसके अंदर, लाइक मिलिटेंट तरीके से. कहीं पे डंडा रखने की भी ज़रूरत है, कहीं पे जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको लेके उसी हिसाब से उनके जिस तरह का तबका जैसी बात कर रहे हैं उस ज़बान में बात करें, उस तरीके से बात करें. हर किसी को एक ज़बान समझ नहीं आती है. बिल्कुल. So some need more simplification, some need over simplification, some need to make like they like to make it complex. So you got to take it there. One man, two men, three men, 300 men, they were not going to be able to do much.
जब तक ये चीज़ें स्टेट लेवल पे नहीं होती हैं। True. समझ रहे हो? और इस मौके पे अब तो पुलिस से लेके एयरफोर्स से लेके आर्मी से लेके हर जगह पे जो है ना आपकी खवातीन है, बिल्कुल। जेट फाइटर पायलट्स है, तो अब इन इंस्टीट्यूशंस को भी सामने आना चाहिए ना, वहाँ भी तो मर्द और औरत साथ काम कर रहे हैं। True. True. नहीं, So then I'm just going to summarize this. So the reason was that all of this is failing, and even if they start working on it today, right here, right now, it's going to take some time. And at the same time, let's face it, this is real world. As a martial artist, I have never almost used what I've learned how to fight किसी को hard, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं आई. I've considered as much. But कहीं पे कभी ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पे आपको फील होता है कि यार यहाँ पे इस बेइज्जती सच है, लाइक हो सकता है इस बंदे ने वैसे ही मुझे बेआबरू करना है, हो सकता है इस बंदे ने मुझे वैसे ही मार देना है, तो मरना ही है या बेइज्जत होना है, बेआबरू होना है, उसके बाद जिस मेंटल टॉर्चर से गुजरे, most people commit suicide after yeah, that. true. So you sort of, when you're going through it, if I just put myself in that situation कि somebody is doing that to me, ठीक है, तो मुझे मेरे ज़हन में उसी टाइम चलेगी ना बात कि यार मैंने क्या करना है, नहीं, और ऑप्शन ही यही होता है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन वहाँ पे आपका दिमाग इतना तंग हो जाता है, इतना वो जो है ना उसका फनल छोटा हो जाता है कि you cannot just fucking open yourself up, that's all you can see. True. तो वहाँ पे इतना तो होना बस कि तुम कि यार मरना है तो दो को तो साथ लेके मारो, बिल्कुल, ताकि अगली बार कोई लड़की कोई बंदी कहीं जा रही है तो 3-4 बंदे उसे देखें, इस तरह के जो कोई कुत्ते होते हैं कि यार उसको लगता है जो मौके जो छिछोरे होते हैं, ठीक है, बेज़मीर, तो उनको सबसे पहले ये डर होती है दफ़ा कि इसके पास पिस्टल ना हो. सर मुझे तो लगता है कि खुले आम एक को टंगाए ना, फिर बाद में देखेंगे कि कौन अब क्या उसमें एक करता और है. इशू है अली, एंड देन देयर इज दिस वेरी क्रिटिकल इशू. आप ये तजर्बा कीजिएगा कि आप सरकार में पुलिस में किसी के पास चले जाएं, जो भी रेलेवेंट इदारा है इस चीज़ से रिलेटेड, कि आपने अगर अपने लिए एक वेपन का लाइसेंस बनवाना, आपकी जान को खतरा है, एंड देन सी द काइंड ऑफ बुलशिट दे पुट यू थ्रू. Exactly. मोस्ट ऑफ यू आंसर एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस. पुलिस वालों को छोड़े, हमने कुछ सेमिनार्स करवाए थे अपने जिम के अंदर, जहाँ पे इट्स नॉट टू बैश एनीवन और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट. लॉयर्स वर इनवाइटेड एज वेल, काफ़ी सीनियर सो कॉल्ड लॉयर्स थे. वो उन्होंने जो वेस्टर्न फेमिनिज्म का भी मॉडर्न जो उन्होंने अपना हमारे गले में दबोचने की कोशिश कर रहे हैं ना अपना वर्जन, उससे रिलेटेड और जो है ना वो कुछ बातें करना शुरू हो गई. तो हमने जब उनसे बीवी से सवाल पूछा कि ये अगर ख़वातीन अपने लिए कोई हथियार चाकू रखना चाहें, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर है रूल है कि भाई आपके पास अगर पता नहीं 2 इंच है 3 इंच से लंबे अगर आपके ब्लेड का फल है, उसका जो ब्लेड है, तो वो उस पर आपको सज़ा हो सकती है, आपको पकड़ा जा सकता है, सम शिट लाइक दैट, बिकॉज वो इतना ज़्यादा जो है ना डैमेजिंग नहीं होता. आपके मुल्क में क्या रूल है? कोई है ऐसा कुछ है कि यार ख़वातीन से ब्लेड रख सकता है कि वो कहीं जाए तो जस्टिफाइड हो? बिल्कुल. मीटिंग के लिए जा रही हूँ मैं, या मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, और जो है ना बाहर दरवाज़ा पे जो है ना वो मेटल डिटेक्टर से मेरा सब कुछ नेल कटर निकलवा के रख देते हैं, और अंदर जब मैं जा रही हूँ, आजकल तो मैं ये बात कहूँगा लाइक द ऑड्स आर प्रीटी हाई के आगे बंदा जो है ना वो जो है वो देख लेगा अकेले, या उसने जो है ना 10 दराजी करनी है, होता है नहीं होता. Exactly. तो फिर we've seen so many videos. Yeah. So उसमें जो है ना हमें एक जो है ना कोई एम्बिग्विटी के अंदर रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है. किसी से भी पूछ लोगे गन लॉज क्या है, इस वक्त आपका नहीं बन सकता हैंड गन का एक, लाइक I've seen other people try, really close friends, Yeah. and I've seen their struggle up front. They weren't able to get it done. They had True. money, they had everything. जिस तरह से प्यारे पाकिस्तान में चलता है आपको सोर्स, they couldn't get it done. Yeah. How come बाकी जो आपके मुल्क में जो आपके सिटी में जो गैंग्स हैं और बाकी दूसरे लोग उनके पास ऑटोमेटिक्स हैं भाई, बिल्कुल. हमें इधर दरेगा 30 बोर रखना अलाउ नहीं है, 22 बोर रखना अलाउ नहीं है, जो पता नहीं 10 फायर भी करेगा ही नहीं करेगा. बिल्कुल. You know what I'm saying? Yeah. हाँ चलो ठीक है मैं नहीं करवाता. ओह देन देयर इज लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन अमेरिका के अंदर जो गन कंट्रोल की डिस्कशन है, अगर वही मॉडल को उठा के देख लो तो वही सवाल होंगे, बॉल पार्क या थोड़े मुख्तलिफ होंगे कि यार जो एक मेरे हाथ में बंदूक आती है तो उसके साथ और क्या क्या उसकी जो ना जिम्मेदारियाँ जो आती हैं, दैट्स गोना रिक्वायर ट्रेनिंग. True. The state knows that if they start giving out licenses even after सही छांटी वेट करने के बाद भी, तो कोई ना कोई सिस्टम, कोई इदारा, कोई सेटअप उनको वरना करना पड़ेगा जहाँ पे लोगों को लाके उसके SOPs बताए जाए, उसकी जो है ना जो वो उसका नॉर्मल उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो उसके आपको बताया जाए कि आपने गन कैसे कंट्रोल करना, हैंडल करना, उस पर कोई सलाम बातचीत हो, कोई काउंसलिंग हो. बिल्कुल. ये नहीं कि अगली बार बस गुस्सा अगर मैंने निकाल दिया. You know what I'm saying? Yeah. So उसके साथ this is a big discussion. Yeah. But eventually you know the country, I know the country. हमारे मुल्क का एक ख़ास तबका है जिनकी माएँ बहनें बाहर जा सकती हैं, बिल्कुल. क्योंकि उनके साथ एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे होती है, गाड़ी में जो है ना बड़ी बड़ी मूँछों वाले और सही तोंदों वाले जो है AK-47 वाले होते Yeah. हैं, उनको इन छिछोरों ने क्या हाथ लगाना. दूरी भागना. फिर एक तबका है जो बाहर ही नहीं निकालता, बिल्कुल. उस तबके की जो है ना औरत वो विटामिन D को तरस गई है कि रेगुलेट हो जाए. You know what I'm saying? द सेम तबका जो बेटी को पढ़ना नहीं देता लेकिन बेटी या बीवी के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर ढूंढता है. फिर बीच में एक और तबका है, ये वो तबका है जो इस मुल्क को चला रहा है,
जो काम कर रहा है सुबह शाम, ये वो तबका है जो काम नहीं करेगा. There's obviously like it's not like one line. There's a big container. नीचे से लेके ऊपर तक मुल्क नहीं चलेगा भाई आपका. True. So, इसी तबके की माँ बहन को बाहर जाना होता है. बिल्कुल. इसी तबके का लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि काम करने के लिए अगर आपको बाहर जाना है तो अगर आप जो है ना नेचर के में जाने के लिए, पार्क में जाने के लिए क्या तकलीफ है किसी को. आजकल तो कोई जा भी नहीं सकता. नहीं जा सकता ना, मतलब because हर I'm चीज़ afraid to गंदा send है. my sister and my mother now out, for example, आज़ादी की कोई celebration है, if there's a concert, this is not the first time something like this is happening, but it's getting worse. और let's suppose अगर हमारी माँ बहनें illegal बंदूकें भी पकड़ें, ठीक है, कोई उनको अटैक करे, वो अपनी सेल्फ डिफेंस में गोली चला दें, हमारी माँ बहनें अडियाला जेल में बैठी हुई होंगी, और जो बंदा जो कर रहा होएगा वो सुकून से ब्रो रात को जिन्ना सुपर में आइसक्रीम खाएगा. हालात ही ये. और पता है, दिस इज़ वेयर हम भाइयों को, हम हस्बैंड्स को, हम फादर्स को, चच्चों को, जो भी हैं, जो द मेन दैट हु यू नो जिनका थोड़ी बहुत इंसानियत, थोड़ा ज़मीर बाकी है. नॉट सेइंग परफेक्ट, कोई नहीं होता. It's अपने आप को क्रेजी शिट करने से रोकना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है. तकवा का सबसे बड़ा फॉर्म यही है. सो इट्स नॉट लाइक हम सब लोग जो ना बुराई से ऊपर है, हमारे अंदर नहीं है, बट वी जस्ट गॉट दैट कंट्रोल. और मे बी वी जस्ट हैव दैट एबिलिटी दैट वी कांट इवन थिंक ऑन दोज लाइंस बिकॉज वी कैन समहाउ रिलेट. हमारा ज़मीर जगाता है कि सड़ी है, घर पे भी है माँ बहन. हाउ द फक कैन यू थिंक लाइक दैट? True. सो दैट सॉर्ट ऑफ आफ्टर यू डोंट थिंक ऑल दिस. बट ज़मीर क्या चीज़ है? ज़मीर के सीन तो नहीं होते. बिल्कुल. वही है ना. Yeah. These men will have to step forward. If my wife, if my sister, if my mother shoots someone, I'm saying this on ये हल्फियन कह रहा हूँ, कैमरे में सत्ता के आगे दुनिया देखेगी. And if they kill them, मैं तो जा रहा हूँ जेल उनकी जगह पे. बिल्कुल. Same. Fuck that. Yeah. True. और अगर एक कत्ल की सजा है, and if there's like there were more, I'm gonna finish them rest of the motherfuckers off and I'm gonna go in, क्योंकि मारना तो एक ही दफ़ा मारेंगे ना. बिल्कुल. There you go. इसी तरह ही. And mindset इसी तरह होना चाहिए. आजकल कुछ लोग भी इतने फट्टू हो गए हैं, खुदा पाक की कसम, कि किसी में कोई हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की भी नहीं. अब ये समझ नहीं आता ना, एक बंदी को अगर फॉर एग्जांपल 4 बंदे छेड़ रहे हैं और वहाँ पे 4 बंदे और खड़े इस तरफ से देख रहे हैं, तो जब आप फट्टू बोलते हो तो फट्टू अपने अंदर एक बहुत बड़ा, लाइक मैं कहता हूँ लाइक बहुत बड़ा वर्ड, अम्ब्रेला टर्म. फट्टू फॉर व्हाट? आर दे फट्टू एनफ कि वो भी जाके हाथ लगाना चाहते और हाथ नहीं लगा पा रहे? अंदर की बात है ना, इसकी बात है ना. उसके इन्नमा मालूम बिनियाद, या मे बी दे लाइक गुड और उनकी फट गई है. सो इफ यू आर ऑन द राइट, तो फिर क्यों फट रही है? बिल्कुल. दिल में चोर है भाई, दाढ़ी में तिनका है, इसलिए आगे नहीं जा पा रहा. Interesting. I think we're going to get a lot of views on this because जितने डेप्थ में आज आप गए ना, and it's all right what he is saying. किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में टटे नहीं है ये बोलने की, जो बहुत साफ सी बात है. अगर कोई और होता बात करता है, he's going to use some like big slangs and phrases, true, and उधर ही कहानी खत्म. उस तरह से आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज़, आपको दूसरी तीसरी चीज़ें आपको मिल सकता है. आप उसको एक ख़ास तबका जाता है. I say this based off of experience. I say this based off my experience on the mat. I have been, like I've had the honor, मौला का ख़ास करम है कि हर 4 साल से लेके 94 साल तक के जो है ना बच्चियों को मैंने ट्रेन किया है with all sorts of problems. One who couldn't pay my fee, जिसका खाना भी हमको खिलाना पड़ता था, and one who could like you know buy like 100 like me. The problem, सबके problems को solution. उस बंदे की जो अरबपति करोड़पति हो जो भी है, उसकी भी गलती से उसकी माँ बेटी एक जगह वहाँ पे फंस गई. अल्लाह ना कर, किधर जाएगी वो सारी बातें हैं. True. उस दौरान तो वही काम आएंगे. मुझ जैसे बेचारे अगर कोई होंगे जो काम आएंगे, चलो कहेंगे यार अगलों ने मार देना है, इसको तो बचा के निकाल लो. There was an incident, I'm going to just tell a story. सुल्तान का किस्सा बताऊंगा मैं. I'm going to say his name. Yeah, because I want to mention it. He was telling me like they went जिना F9 पार्क में, बहुत पुरानी बात है, I 15 years ago or something. और वहाँ पे जो है ना, ये कोई बसंत फेस्टिवल था या कोई 14 अगस्त का कोई फेस्टिवल था. There were these boys, some gang boys. They started ripping the clothes of this girl. उसका जो लड़के थे उनको भी उन्होंने मारना शुरू से, कपड़े शपड़े उन्होंने फाड़ दिए. अब ये थोड़ा सा खर दिमाग का है. I'm not saying he's like ideal or he's a saint or शेर आदमी है. but he's like वो खर उसने देखा और उस टाइम वो हमजा से नया, तो he's like what the fuck is going on? Yeah. His friend stopped him. He jumped in. He punched a few of them. और आखिर में तकश को डर के भाग गए कुछ लोग. जो 3-4 उसने ऐसा लिटाया, कहते हैं कि जो 4-5 थे वो भाग गए. और उसने जिसके साथ जो लड़के थे उनको गालियाँ देते कि बगैरत के बच्चों तुम लोगों के साथ. There were 5-6 guys as well, freeze खड़े हुए. कहता उसके ऊपर उन्होंने शर्ट डाली, उसको वहाँ से ले गए, वो सॉरी करके वो थैंक यू करके चले गए.
और जब मैं पीछे मुड़ा तो पूरी एक फौज आ गई थी डंडे और ईंटें पता लेके then I took my ass kicking. Yeah. You know, he was in bed for days. Shoot. But that's the price. Yeah. That's pride Like, as well. It's not like I take my phone out and here's $100. I Yeah. feel that हाँ. shed some tears for me, bitch. मारते हुए एक वीडियो बना रहे थे, मैंने मारा है, देख रहे हो ना तुम लोग और ये हालात यही है आजकल सबके, मतलब एंड ये काफ़ी सत्यानाश मेरे ख्याल से, जो ये कहना नहीं चाहिए लेकिन खैर I'm fucking saying it, कि ये जो इन्फ्लुएंसर बनने का एक शौक आ गया है ना हर एक दूसरे बंदे को, just for the views, just for the fame and everything, वो चीज़ इस चीज़ को और प्रमोट करिए कि आप जो भी अच्छाई कर रहे हो, आप जो भी चीज़ इस दुनिया में कर रहे हो किसी के लिए, इवन इफ इट्स आई एम गिविंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम बाइंग योर हाउस, आई हैव टू फिल्म इट टू शो इट टू द वर्ल्ड कि मैं अच्छा हूँ. वो उस फिलॉसफी पे चलता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा. तो होगा तो नंगे होके चौक में नाचो ताकि सब देखें. ठीक है. So that's what you gotta do. Yeah, true. Right? अगर वो खुशी के जेन्युइन खुशी के मारे अगर मेरे गाल सुर्ख नहीं होते तुम्हें थप्पड़ मार के लाल करना पड़ेगा ना. Because you gotta show. Yeah. But and again, there's facets to it. I personally I never, because again it's just being, it's the blessing of being a coach. Coaching job ऐसी है, a teaching job ऐसी कि आपके अंदर सब्र पैदा कर देती है. I was an asshole, I was an idiot. I mean, still am proud of it. But अब इतना है कि when I listen to someone, I have the ability, I'm actually paying attention and listen to them. And that unravels so many things. हमारी जो मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम के ऊपर, फिर सोशल के ऊपर जिन चीज़ों को जो हाईलाइट किया जाता है ना, मुझे कभी लगता है असल ज़िंदगी उससे हटके भाई. True. इट्स टोटली डिफरेंट, टोटल अलग मसले और उनके टोटल अलग सोल्यूशंस है. हर लेवल पे सोल्यूशंस होते हैं, माइक्रो से मैक्रो. I gotta do my job, you gotta do your job, and Khan's gotta do his job. True. I want to ask Heather something. Heather, now you said that, let's go back to mixed martial arts now. Heather, you said that you want to fight 3-4 fighter तुमने पाकिस्तान में खेलनी है. What's your hit list? Because of course, a person like you have something in mind with so much experience. Who are the top 3 opponents you want to choose to face? ब्रो सबसे पहले तो इसके साथ रीमैच करना है इज़्ज़त खान के साथ. ठीक है. And that's first. ये आप चाहते हो कि ये पहले ही खत्म होगा. ठीक है. उसके अलावा कोई ख़ास वो नहीं है, बस जो भी आ जाए बस लड़ना है. तो ये सीन है. बाकी मतलब ओपन ब्रो, मतलब अगर किसी कोई चाहता है कि मतलब कोई मेरे साथ फाइट करे, ओपन चैलेंज भी, मतलब ओपन चैलेंज तो कुछ नहीं कहूँगा लेकिन Open challenge. स्ट्रीट फाइट. ये open challenge. ये I take that back. Lorry you guys love it. Open challenge. They like to throw open challenges everywhere. There's every event you guys gonna be some idiot open challenge. बैठ जा भाई. मुझे वो याद है FA5 था, तो मैं और सूडो साथ गए हुए थे. ठीक है. तो एक फाइटर आता है फुल तैयार वार्म अप, हाँ भाई चले साइन कराए फाइन ओपन चैलेंज. और सूडो मुझे देख रहा है, सूडो को देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है भाई. खुले आओ मुंह पे. सूडो कह रहा है भाई मैं चिल मारने आया हूँ. तो मसला क्या है. अच्छा कोच, I'm going to name a few names, the prospects of your gym, and just give me a sentence about them. ठीक है. कि what they're planning to, what's up. Zia Mashwani, Work in progress. Alumi Kareem, Work in progress. Zishan. Detract, long way to go. He has to retrack and then we're get back into zone. Heather Farman. Work in progress. Okay. Najim Khan. Shitloads of work in progress. All right. Yeah. So, and Anita Kareem. Same shit. I mean, Anita she's brilliant. She has that quality. जिस हर किसी का होता है. You know, she's no less than anybody. But based upon what we've seen her do and based upon हमारे जो calculation, वो भी कम करके थोड़ा सा उसमें से concession देके के क्या कर सकती है. She's work in progress. Yes. All right. So you said work in progress for almost everyone. मतलब कि they can't reach perfection abhi. But in work in progress, like do you think they're ready to go into any event right now, face a high level opponent, or are you going to take it easy on them? कि मतलब easy is in the sense कि give them more time to train. कि मतलब नहीं बस for now just train and no competition, or is competition included in between? I'm going to answer it something like this. I want them to fight, but I've got the timeline in front of me, you know, such as this image that you've got here in front of me. Yeah. I'm not fixated here. Maybe we're here and we have to go here. But let's just say I've tried to calculate जितनी मेरी हमकाना सोच है कि यार हमने यहाँ तक पहुँचना है, right? Yeah.
So they're fixated on this point. They want to just fight, just put them in there. You know, they're just like, you know, the pit bull. Just let me at him, let me at him. Yeah. And they're always like that. Yeah. I've been at it, working. I'm not saying that 3 साल training करो उसके बाद लड़ो. They're gonna fight frequently. But remember, when you're fighting frequently, you do not have time to learn anything new. Because competition की जो आखिरी जो हमें 8 हफ्ते स्टैंडर्ड होते हैं, उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ आप करते हो जो आपकी बहुत अच्छी होती है. बिल्कुल. ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस. ठीक है. आपके पास टाइम नहीं होता कुछ नया करने के लिए. वो आप टाइम नया करने की कोशिश करते हो, आखिरी 2 महीने, इवन आखिरी 3 महीनों में भी आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप जाके मैं क्या करूँ. True. सो वो जो नई चीज़ें आपने करनी होती हैं, तो जो आप टिप्स पे उस कॉम्बो के वो 8 हफ्ते के अंदर बेसिकली व्हाटएवर यू लर्न ना, यू ट्राई टू टर्न योर पंच इनटू फ्रॉम अ बाइस बोर्ड टू अ फ्रिकिंग बजूका. More speed, more Yeah. power, more. That's all. वही होता है. You Yeah, get really true. strong. These guys, some of these guys, क्योंकि ज़्यादा कैंप्स इन्होंने बैक टू बैक एक कैंप से दूसरे कैंप में गए हैं, but they're just like still beginners. Like 8वीं पास भी नहीं है MMA के Yeah. हिसाब से ये लोग. True. So I don't care how strong and big you Yeah. are. I put you in front of like some of these guys जो international level पे लोग आ रहे हैं. Holy shit, they're like the Killers. perfect blend Yeah. of. मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान में ग्रैपलर अच्छे हैं तो कल को क्या करोगे जब ACB या 1FC में कोई तुम्हें BJJ का ब्लैक बेल्ट भी है और जो है ना मुay thai में राजा दामदरन या किसी पता नहीं टाइम या आपने किसी जगह में किक बॉक्सिंग का चैंपियन भी है और some shit. What are you gonna do then? On paper तो वो तो बंदा ले गया तुम्हारी. True. But it's not about that. Yeah. तभी तो बेल्ट का सिस्टम नहीं है, तभी तो सिर्फ बिल्कुल. टाइम होता है. Right? So I want them to have good and long careers. Yeah. I want them to fight frequently, and I just want them to get somewhere in life, even if it's not the UFC or 1FC or being a champion of any of these organizations. Because of MMA, directly and indirectly, I want them to be somewhere in life जहाँ पे इनका future किसी न किसी तरीके से secure हो, इनको अपने और अपने बच्चों का नाम ना भूले, और ये destitute ना हो. All right. Because अभी भी पाकिस्तान के जो है ना, अभी तो MMA का शुक्र है, उसके बाद आगे थोड़ा सा उठ गया जो पाकिस्तान में जो मार्शल आर्टिस्ट का जो फाइनेंशियल जो स्टेटस या लेवल था, वरना उससे भी डाउन द फकिंग gutter. Yeah, and I have to, you know, appreciate you and hand it to you, coach. कि you could have also chosen some other path. Of course, पैसों की तंगी होती है. सबसे ज़्यादा इंसान को इसी चीज़ की तंगी होती है, which leads to other things. आपने अब मैं देखता आ रहा हूँ कि where Fight Fortress started from. ठीक है, literally on the mats on some park. To mashallah, I believe, and I'm saying it out loud, the best mixed martial arts gym in Pakistan. दुनिया जानती है. मैं कराची जाता हूँ, अब उन्हें देखा हुआ है काम कि अच्छा फाइट फोर्ट्रेस ये फाइट फोर्ट्रेस. अब everybody knows कि भाई फाइट फोर्ट्रेस ही है. Yes, बाकी भी आ रहे हैं. But you know, props to you for putting in the time, for sacrificing so much. ठीक है. अच्छा coach, I have one last question and then let's wrap it up. Yeah. थोड़ा सा cliche type question है, लेकिन मैं पूछूंगा. Name your top 5 mixed martial artists of Pakistan. अच्छा, my top 5. मुझे लगा था ये कोई subjective. I wanted to debate this and discuss this with you. चलें, let's do it. Let's do it to narrow it down to number 3. Top 3. ठीक है. 3 3 भी चल जाएगा. Who would you say? So I would ask you, what is your criteria for best पाकिस्तान के अंदर? सिर्फ fights जो उनका रिकॉर्ड है, skill level या स्किल जो है ना, वो अब स्किल में भी फिर एक और सवाल आएगा. एक स्किल फॉर एग्जांपल तुमने ट्रेन किया हुआ है, राइट? Yes. बहुत. सो तुमने कुछ लोगों को केज में भी एक्शन में देखा हुआ है, तुमने जिम में भी एक्शन में बिल्कुल. देखा हुआ है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स समटाइम्स इट्स सेम, yeah ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स टू पोल्स अपार्ट. yeah सो व्हिच वन इज द ट्रूथ एंड व्हिच वन इज द रियलिटी, वो द फेक, व्हाटएवर. ठीक है, उनमें सच क्या है, झूठ क्या, असली कौन सा स्किल था इसमें? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? असली दोनों स्किल है, बट स्ट्रेस के अंदर कौन बंदा अपने आप को, और फिर मुख्तलिफ. यू पुट वन गाय इन फ्रंट ऑफ मी अपार्ट फ्रॉम वन गाय, ठीक है, वन गाय, यू पुट एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम गोना शो यू अपार्ट कपल के हाउ दे फोल्डेड अंडर प्रेशर. मुझे जितने लड़कों के हैं उनके रिकॉर्ड बताओ, जो क्लीनेस्ट रिकॉर्ड जिनके हैं, मुझे उनके नाम बताओ. आई एम गोना शो यू, और मे बी वी कैन लाइक you can watch it online, Yeah. how they folded under pressure. And then at the same time I'm going to show you guys who don't have good records, they never folded. yeah Okay, true. so अब ये कुछ फैक्ट, This is just complicated it more now. क्योंकि बेस्ट वाले जो बात है जो ना, Yeah. क्योंकि जब बेस्ट बोलते हैं ना तो इट्स लाइक वो मेरे कानों में कुछ वैसा लगता है Yeah, जैसे सरिया मारा था. yeah, व्हाट इज yeah, व्हाट इज yeah. फकिंग बेस्ट? बिकॉज़ ये तो पाकिस्तान लेवल का ना, चलो अपने बॉयज हैं, सबको जानते Yeah. हैं. माइटी माउस जैसे बंदे को, फेडोर जैसे बंदे को, काजुशी साकुरावा जैसे बंदे को, दिस लाइक अदर दीस बहुत सारे ऐसे बंदे हैं. Yeah. इगोर वोबचांचिन जैसे बंदे, लाइक फकिंग हेल मैन, देयर इज लाइक डिफरेंट एनिमल्स. Yeah. ठीक है, मार्को हुआस हो गया, मुरिलो बुस्तामांते हो गया, जिमारियो हो गया,
ऑल ऑफ दीज गाइज द वे दे यूज्ड टू फाइट, क्या बात होती थी। उसके बाद मैट ह्यूज देख लो, बीजे को देख लो, जीएसपी को देख लो, राइट, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम न्यू शिट। और आजकल जितना उसका ट्रिकल डाउन होता जा रहा ना, उतना एक डाइल्यूटेड वर्जन लोग देखते जा रहे हैं। True. सो नाउ यू टेल मी, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट इन द कंट्री? The best in the country. 3 कोई भी। मैं तुझे चल एक और क्राइटेरिया दे देता हूँ, देख बेल्ट्स की बात है, लाइक स्ट्राइकिंग प्रावस देख लो, रेसलिंग प्रावस देख लो, ग्रैपलिंग प्रावस देख लो ना, ये 3 चीज़ें देख लो। Yeah. और फिर अगर क्योंकि फाइटर है उस हिसाब से देखना चाह रहा हूँ का स्किल, Yeah. लेकिन बस स्किल फिर अगेन जो है ना और थोड़ा बहुत डीप होता है स्किल में। द स्किल दैट आई वांट टू, द स्किल एक मेरा वो स्किल है राइट, जो जब मैं बना फाइट दैट्स गोना काम, और उसका ऑब्वियसली वही टेक्निक्स टूल जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए रोजाना Yeah. मैं करता हूँ, even if I know 10 versions of that, but if I'm practicing one, that's वो मेरे काम आएगा। Yeah. Obviously मेरा my ability to hold myself together under pressure, 2 बड़े critical skills हैं। You fight the way you train the way you fight है, उसके बाद फिर आपने if you दिमाग out तो फिर out, Yeah. unless you're him Yeah. फिर गए होगे, He's in my top 3 by the way. ठीक है? Yeah. तो I'm excluding him right now, उसके Okay. साथ बैठा हूँ, हाँ. उसके साथ जो है it's not cool, इसके अलावा छोड़ के आता है। तो now give me any names। Okay, so जो मैं देख रहा हूँ since I'm speaking on behalf of the past 10 years in which I've been following martial arts in Pakistan. Third पे लुमी करीम है मेरे लिए। सबसे पहले experience, ठीक है, his dedication. I used to be in university with him. I used to see university की hustling, फिर gym में training. Right now he's working jobs at night. He's coaching in the morning. ठीक है ना? मैं ये perspective भी चीज़ें डाल रहा हूँ side में, ठीक है? Skill level, heart. मुझे लूमी का उस दिन पता चल गया था जब ब्रेव मैंने लाहौर में लूमी को परफॉर्म करते हुए देखा कि ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग आफ्टर द फर्स्ट सेकंड राउंड, येट ही इज़ परफॉर्मिंग, येट ही इज़ थ्रोइंग पंचेस बैक, येस ही इज़ डिफेंडिंग टेक डाउन्स। तो वो देख के टॉप 3 में थर्ड फॉर मी इज़ लूमी करीम, ठीक है। सेकेंड द जायंट। वाई द जायंट? एक्सपीरियंस। और दूसरी बात ये, द किड हैज़ सो मच हार्ट. He's not a quitter. I've never seen him quit in any fight. I've seen him make people quit. लेकिन मैंने नहीं देखा हैदर कभी स्लो डाउन हुआ है, कभी थका है, कभी उसका माइंडसेट डाइवर्ट हुआ है. He knows कि भाई I'm in a fight, either be it 3 rounds, 5 rounds or an entire day. मैं करता जाऊँगा, खींचता जाऊँगा काम, and I'm gonna get the win. He finds ways, ठीक है. अब जिस तरह निंजा चोक इसने किया था ब्रेव में, मतलब it was fantastic कि मतलब जिस तरह फाइट जा रही है, he just turns it all around, ठक, gone, fight finished. And first, जो मैं बोलूँगा, I'm not sure if you're gonna like this or not, but I think Mushtaba is number 1. Why? Because सबसे पहले he started as your student. You know him best. That's it. ठीक है ना? You know what is what. लेकिन timing उसकी सारी चीज़ों की ना, अब मैंने देखा था कि 4 years layoff. He was my first guest on the One-to-One podcast. I started this in 2018. ठीक है ना? तब से लेके अभी तक he was waiting for a fight. Consistently kept on training. जो भी internal चीज़ें हुई, I don't want to know about that. मैं personality basis बात कर रहा हूँ, skill level बात कर रहा हूँ. He kept on training, and boom, सबका जो बोलते हैं ना, time लिखा हुआ है, time आएगा. मुश्तबा का time आया, मुश्तबा ने perform किया और सबसे बड़े stage में perform किया. The knockout, spectacular. It has 7-8 million views on One Championship का Facebook page. तो इसलिए this is what I think. My top 3: Lumi, Farman, and Mushtaba. ठीक है, and I don't disagree with that. मेरे लिए मेरे ज़हन में ये था कि इधर इसको नबी वक़ार उमर और इसको नबी अहमद मुश्तबा जो तुम बोलोगे, एंड मुश्तबा के बिल्कुल वेरी वेल डिजर्व्ड. अब ऑब्वियसली उसमें फैक्टर्स हैं, और फिर अहमद को लेकर हमारी हिस्ट्री, लाइक जब हमने स्टार्ट किया फिर उसके बाद जिस तरीके से लाइक उसका एग्जिट हुआ, तो उस पर व्हेन इफ आई कमेंट से एनीथिंग टू काउंटर एनी ऑफ व्हाट यू हैव सेड, नॉट सेइंग कि खुद गलत बोला है, बट ऑब्वियसली देयर इज अदर लाइक उसमें क्रैक्स कुछ हैं. Of course. That's why I said you know best. तो इट्स गोना लुक वेरी लाइक मेरी तरफ से कि इट्स गोना लुक कि यार ये तो अब उसका तो उसकी ख़त्म हो गई है, तो अब जो है इसलिए ऐसा बोल रहा है. ऐसी बात नहीं है. हमारे मसले एंड एवरीथिंग अपार्ट, I've always like wished these guys the best. They're not my enemy. Yeah. हम लोग अपने दुश्मन के लिए बददुआ नहीं करते. They're my students. Yeah. They're the guys I remember जब अहमद मुश्तबा पहली दफ़ा आया था मेरे क्लब में. I remember जब उसको लाइक पहली फाइट करवाई थी मैंने. I remember जब उसके अगली दूसरी फाइट तीसरी फाइट जो आगे तक गया था. But the kind of the reason जिस वजह से डिपार्ट हो जो होता है उसके आसार हर बच्चे में. When you take, if you're a parent,
इफ यू इन्वेस्टेड, आपको पहले से पता है कि ये मेरा ये वाला बच्चा बड़ा हरामी होगा, ये वाला थोड़ा सा मेरा शरीफ होगा, वो वाला ऐसे होगा. इट्स जस्ट लाइक दैट. समझ रहे हैं? एंड इफ लाइक द मोर यू टाइम स्पेंड टाइम विद देम, और आपको उनके बारे में और उनको आपके बारे में पता चलता है. पेरेंट का तो इस तरह होता है कि अगर आपको और आपके पेरेंट के बीच ज़्यादा एज डिफरेंस ना हो, तो बिकॉज लाइक इज अ बायोलॉजिकल पेरेंट, तो आपको फिर भी रिस्पेक्ट करना है. हियर मेरे और उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. और फिर उसके बाद I've never tried to be one of those guys who never did anything in front of those guys. Like, you know, they fly on lotus, उनके पाँव कभी गंदे नहीं होते और हमेशा अच्छी बात करते हैं. They saw my best version. They've seen they still do it. जो अभी तक मेरे साथ हैं. They've seen my worst version. But at the same time, they've also seen me first and witnessed me hold myself together, not given to any of the bullshit that I'm doing with my life or any of the bad habits, and manage to walk that path and get somewhere in life. Not because people are saying, but because I feel like it. I feel like there's some substance. I'm still useful to myself. The day I stop being useful to these guys, carrying ko sab aa gaya, I'm gone. I'm off to Shimshal. I can't even herd sheep, or I can't even herd the fucking cattle. So I'm going to be lazy ass sitting somewhere, and you know what we do in the mountains. So Bashambro, 420. 420. So anyway, that use का थोड़ा सा background there, but ठीक सही कह रहा है. But again, man, this puts me in a tough situation. अच्छा है, राहुल वाले उस पे पता था, और I'm just gonna correct you in few days. You said he was waiting for a fight for 2 years, 4 years. I'm gonna go ahead and I'm gonna say he was waiting for this fight for that entire time, not a fight. Because a fight means अली किससे लड़ेगा? मेरे वेट में अगला जो है, अच्छा हैदर के साथ फाइट लगा. Oh shit man, he's tough. ओके ठीक है, लड़ लेता हूँ, कोई बात. डर किसने लगता भाई? And then they say wait a second, दूसरे वाले से maybe he's too, राहुल, राजू and अहमद मुश्तबा. राहुल से मैं मिला हूँ, उससे मेरी बहुत अच्छी बातचीत होती है, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरे को कोच बोलता है. ठीक है. सिंगापुर में उसने लगा तो इज लाइक आई फकिंग लव दैट गाय. उसकी लास्ट जो परफॉर्मेंस है और उसने इम्प्रूव किया. राहुल इज द एपिटमी कि किस तरह से बार बार रॉक बॉटम हिट करने के बाद भी व्हेन अ मदरफकर डजंट गिव अप. राहुल राजू उस स्पिरिट का नाम है. ठीक है. उसके बाद जो अगले उसने फाइट किया एंड अगेंस्ट अ वेरी टफ ओपोनेंट. अहमद को हमने तैयार किया था, he was you prepared him like a super fucking soldier. उसकी टैलेंट, उसकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं. ठीक है. बट पहला वाला जो हमारा एक मैनेजर था, एक बॉय, उसकी वजह से, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना भाई. अब हमको अगर गेम का पता है, टीचिंग का पता है, तो अब हमें तो मैनेजमेंट का इन चीज़ों का शुरू में नहीं पता था. सो अगर कोई बंदा जो है ना वो भेड़ की शेप में भेड़िया आता है, तो हम क्या करेंगे? हम तो सबको गले लगाते हैं, वो बाद में अगले हैंड करके जाते हैं, और फिर जब हम डंडा करते हैं तो फिर रोना शुरू करते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एंड यू आस्क एनी ऑफ दीस पीपल कि उनमें से किसके पास हम गए हैं और हमारे पास कौन आया? वो सबको पता है. वो सबको पता है. ठीक है. सो नाउ राहुल, सॉरी अहमद, हर इंसान का एक टाइम होता है, एक टेस्ट होता है जहाँ पे उसका इम्तिहान आता है. ठीक है. अहमद, when Ulumi won the first time, अहमद उलूमी साथ जीते थे उसमें, तो मीडिया ने, क्योंकि इसने वो इंडियन को मारा था, याद सिंह को, तो मीडिया सारे जो है ना वो आ गए इसके पास आलू छीलने के लिए कि भाई जो है ना तू एयरपोर्ट पे भी. और उस दौरान मुझे ऐसा लग रहा था किसी बंदे ने मुझे मुक्का मारा है, क्योंकि मेरे लिए उलूमी और अहमद का कोई फ़र्क नहीं था. उसके दिमाग में जो है वो एक अलग बात होती है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एंड देन द काइंड ऑफ शिट स्टॉर्म दैट वी गॉट फ्रॉम हिज फैमिली कि यार दे आर ऑलवेज ओनली टॉकिंग अबाउट लुमिन. हमने, आई शुड बी सेइंग, लेकिन हमने एक्चुअली में और सुल्तान ने कुछ कैमरामैन जो हमारे जो बॉयज़ थे, न्यूज़ रिपोर्टर वाला आए थे, वी थैंक देम को कवरेज देने के लिए. वी एक्चुअली हैड टू सॉर्ट ऑफ झिंझोड़ना पड़ा था उनको बिहाइंड द सीन. हेलो इंटरव्यू, यू नो क्या चुतियापा है? वो जीत का है, वो बेल्ट जीत का है, वो बेल्ट नहीं जीता उसने, मालिक इसके पास बेल्ट है भाई, इसको लो, ये चैंपियन बन का है. सर हमें किसने पूछा? यू नो, एंड दोज मीडिया ना भाई उनका काम है, उन्होंने हाँ जाते हैं, निकाला, बाद में आया तो सारा उसका उन्होंने जो है ना वो बीपर डाला हुआ था और लाइव उसका कर रहे थे. हमें भी उतना ही लगा. वो अगले 2-3 दिन नींद नहीं आई थी मेरे को सही तरीके से, बिकॉज वी नो द काइंड ऑफ शिट स्टॉर्म. जितना ऊपर जाता उतना मसला होता जाता. दिस वाज द लास्ट थिंग दैट हैपेंड. एनीवे, टेस्ट्स हैपेंड आफ्टर दैट. And then when he started getting that fame, हवा भरी भाई. I'm saying it on live. He's not going to deny you. दिमाग में हवा गई. Discipline जो पहले होता था वो नहीं रहा. Now he wanted. We were saying, Ahmed, 1 o'clock is your training time. 1 to 3 p.m. Everybody's going to be here.
क्योंकि 3 o'clock के बाद या 4 o'clock के बाद जो है ना क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद हमारे क्लाइंट्स आते हैं, द पीपल हु एक्चुअली पे फॉर दिस प्लेस दैट कीप्स द रूफ ओवर योर नॉट पेइंग एस. Okay? You're freeloading ass, if I gotta put it like that. So have some respect उस time आना, not one session. ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, सबसे पूछना चाहिए. Everybody used to come. मशवानी और ये लोग तो उस time up and coming थे. They used to come. कि अहमद भाई की फाइट है, हम लोग आएंगे, हम लोग साथ ट्रेनिंग करेंगे. Motherfucker doesn't show up. क्या कर रहा था? मैं नीचे वेट लगा रहा था. क्यों लगा रहा था भाई? जब हमने डिसाइड किया है कि तेरे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को हम लोग खुद वो कर लेंगे, पहले इसके टेक्निक का तो कुछ पढ़ ले, उसके बाद हम वेट कर लेंगे. मैं अब थक गया हूँ और मैं जो है ना 150 kg डेड लिफ्ट लगा कर ये करके आया हूँ, तो अब मैं 150 उसके बाद तो क्या करवाऊँ? मुझे पैड वर्क कराओ, मुझे वो कराओ. I've got 4 private clients waiting. I've got 50 people on the mat waiting. ठीक है? And you want me to train your ass now when we've been waiting 3 hours for you? इतना तो ऊपर वाला भी आ जाएगा तो हम कहेंगे कि भगवान क्या सीन है? You know, don't do me like that at least. So हो गया मसला. Again, what happened? He fucking lost his fight against which was it, that Indonesian Bali MMA का अपना boy था. समझ गया हूँ. ज्ञानी सुबह के साथ. I was मैं बोल रहा था कुछ, वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था. And even the जो commentator से मैं तो देख के बाद अपने कहा कि what the fuck, तू बोल रहा था, सुन ही क्यों नहीं रहा था? नहीं ट्रेन किया रे भाई. The point is, we got blamed for everything. I was the one that said, get out. उसके अंदर और details थी. He came back, a lot of stuff happened, but I was the one that told Sultan. Like, you know, अगर इन सब कोई फायदा ना हो तो नुकसान तो नहीं हो, because this shit is growing. And allow me, bite me, I'm going to go ahead and say this online, क्योंकि एक दफ़ा बात होएगी तो करेंगे. I'm not going to like go, I'm saying he's a bad guy or anything. I'm just saying that the demise, मैं quality की तरफ मैं खींच रहा हूँ. उसका main वजह ये है कि एक pride होता है और एक आपकी undisciplinedness होती है. अहमद जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए मिसाल है कि इस तरह का एथलीट होना चाहिए, इन हिज स्ट्रेंथ एंड हिज फेरोसिटी एंड एवरीथिंग, वहाँ पे इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ नॉट टू बिकम when you gain some sort of fame, when you get some sort of success, and when you lose, how not to distribute the blame on everybody else but you. Because this is life. एक फाइट मैटर नहीं करता. अब 4 साल बैठ कर अहमद थी राहुल राजू से जो पिछली फाइट किससे हुई थी मुझे बता? वो जो चाइनीज से हुई थी, जिससे हुई थी, जिसने वो बैक ऑफ द हेड मारा था, ठीक है? उसके बाद माजी आवन के साथ हुई थी. माँ ने इसको like उसी की टीम है तो उसने he lost from he fought another Chinese guy, right? No, he fought that before. He fought him before that? Yeah, he fought before that. Oh yes, my bad, yes, ठीक. That was the fucking test. Yeah. That was the test. लेकिन जब उसको, हालांकि उसके लिए इस दौरान मेरे ख्याल से हमारे साथ नहीं था चाइनीज़ वाली फाइट में, वो छोड़ चुका था अपना सिस्टम अलग, बट पूरा जिम बैठ के देख रहा था और माई हार्ट वाज सेम लाइक 190 बेंच और 290 हो गया था, फट रहा था. माई कॉर्टिसोल लेवल शूटिंग एंड मैच. अब क्या होगा विद एवरी फाइट दैट हैपेंस? तो आखिरी वाली फाइट भी हम देख रहे थे ना जिसमें उसको सर के उसी की तरह बात कर रहा हूं. वो सो वरी टू डूइंग कॉल्स. हालांकि जो दूसरा उसका जो मैनेजर है फैजान, उसको तो है ना, अब मैं वो मिलेगा तो वो मार खाएगा मेरे हाथ से. बट अफाकिन ये बट आई वाज कॉलिंग हिम डिस्पाइट दैट. सुल्तान सर यार उसका तो नंबर हमारे पास है, पूछ कॉल कर क्या है, बच्चों को लगी तो नहीं. बशीर को फ़ोन किया, बशीर ने 2 घंटे बाद रिप्लाई करनी, ठीक है, उसको एम्बुलेंस भेज दिया. भाई जितना भी मसला अपना लड़का है, लगती है तो अपने को दर्द होता है, अपनी भी जलती है. वो जीतेगा बेशक, उसके सहरा सारा, बट अंदर से जो कुछ हमें होती है यस जीत गया. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर अहमद मुश्तबा, एनीबॉडी. It can be a Waqar Umar, it can be and freaking anybody from Karachi, it can be a Rizwan or Zai, it can be an Ismail, it can be an Izzat Khan, anybody. International stage पे वहाँ पे ये सीन नहीं होता कि ये TFF नहीं, वो नहीं है. वो अपने घर का मामला है भाव, माँ की आँख है पूरी दुनिया की. सही बात है. पाकिस्तानी है तो हमारे में जो है ना वो होता है, and we're all rooting for. I'm saying. Yeah. So now you fight that level of competition, Lee Kai Wen, Maji Awen, जिनसे जो है ना champions विनर रहते हैं, and all of a sudden you come and fight Rahul Raju. और राहुल राजू की रैंकिंग्स कितनी है, राहुल राजू का रिकॉर्ड क्या है? आपके पास एक सेलिंग पॉइंट था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. और ये चीज़ अहमद ने जब पहले इवेंट में जब उलूमी और वो दोनों लड़े, ये इसने फिलिपिनो को चोक किया, इसमें ब्यूटीफुल सबमिशन ओमो प्लाटा इनटू ट्रायंगल सुला दिया और बेल्ट जीता. और जब पाकिस्तान ने इसको ये दिखाया ना, इसको समझ आ गई. समझ आया? सो अब इंडिया, अभी आगे रोशन मैनाम भी है इंडिया का. I would want him to, you know, but love to see fight. I would यार ठीक है, तू कर ले, तू हर जगह जा, बट ठीक हो गया ना, कैश कर लिया, start fighting in the, climb your way up in the rankings man. लोगों को दिखाओ ना यार. लाजमी दिखाना होता है कि पाकिस्तानी फाइटर की जो आखिरी क्वालिटी होती है, like you know, you're gonna see most time the shit fights, बंदे को लगता है कि पाकिस्तानी है. Why does that have to happen? Why does like कोई यूनिक, यार मुझे लग रहा था कोई रशियन लड़ रहा है, कोई ब्राजीलियन लड़ रहा है.
True. So yes, 8-0, 7-0. वो जब 7-0 तक था 8-0 होता था, वो मेरे साथ 7-0 Yeah. था, I remember. राइट? उसके पहली जो फाइट थी उसके फाइट देखो. So मैं अपनी बातें में से मीन्स TFF, Fight Yeah. Fortress, not एहतिशाम करी. फर्स्ट फाइट ही वन, कोई बाहर ट्रेनिंग नहीं की थी. हमारा 800 स्क्वायर फुट का हमारा जिम था. ये आपके स्टूडियो से भी छोटा था. G10 में G11 में जो सबसे पहला जो छोटा मसल मेनिया के अंदर. नहीं मसल मेनिया के बाद हमने जो अपना अच्छा खोला ठीक था, है. उसके बाद हम मसले पर वहाँ पे उसने उसकी फ़ाइट की प्रैक्टिस की थी. एंड वॉच दैट फाइट. उसकी पहली फाइट अगेंस्ट एडी इन का भाई था. इट्स लाइक गाय विद लाइक बेनेडिक्ट एंग मदरफकर. लेकिन अहमद ने जो लाइक वो सही अहमद मुश्तबा, वो अहमद मुश्तबा रहता ना, जो हम्बल था और जो काम कर रहा था, जो हंगरी था, उसने चौथे पांचवें फाइट के बाद टाइटल तक पहुंच जाना था. क्योंकि जो बता रहे थे बंदा कर रहा था. फिजिकली स्ट्रांग है, स्टेमिना है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ पावर सब कुछ, फ्लेक्सिबिलिटी है. वो अगर उससे कोई सीधी शॉट नहीं लगती, सीधी टेक्निक तो पुट्ठा उल्टा कुछ ना कुछ करके कोई गर्दन हाथ मरोड़ गया ना, टैप करवा देता था. बात समझ रहा है? True. बट ही हैड दैट थिंग. सो बीच में एक दफा उसको हथौड़ा मार के उसको फील हुआ कि यार नहीं, आई गॉट टू गेट समवेयर. सम फाइट्स ही वाज लाइक ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग. Yeah. गालियां दे के सुल्तान ने उसको भेजे, अगर तू गया तो मैं तेरी आंट मारूंगा. समझ रहा है? कि यू गोना फाइट. ही ऑलमोस्ट क्विट एंड देन ही रियलाइज्ड कि शिट, मैं लाइक आई कैन डू मोर. बट देन इट वाज शॉर्ट लिव्ड मैन. Yeah. So the day he fights a credible guy, the day he fights someone of his own caliber at least, puts on a good performance, is the day I'm going to say, yes, he's the number one. Otherwise, don't give him number one. If you want to give it based on that, give it to Waqar Umar. Yeah. ठीक है? क्योंकि वो veteran भी है one के अंदर, and then he's fought, and then he's improved. Yeah. At the same time, देखो, Ahmed is a purple belt now, right? Yeah. Waqar is a purple belt now. I would love to see both give a seminar to the same group of students. तुम देखना वकार कैसे ट्रेनिंग करवाता है, लड़कों सिखाता है, और अहमद कैसे सिखाता है. This is not, again, I'm not shitting on it, I'm Yeah. stating a fact. Yeah. If like it goes the other way around, then obviously मैंने on camera अगर बोला तो मैं on camera I'm going to take my words back. I'm going to apologize. Shit, he's improved. Yes, मुझे नहीं पता, right? But it's going different. Yeah. Waqar is a senior proper purple belt. उसने जो fights की, उसने सही तरीके से उसके अंदर लड़ा है, जहाँ तक भी जिसता भी लड़ा. But Ahmed has to fight legit competition in order to be best. Yeah. Why am I saying this? पता है? Why am I saying this? The reason is कि इसके लिए हमने fight fix नहीं की. उलूमी के लिए हमने कभी fight fix नहीं की. ज़िया मशवानी के लिए fight fix नहीं की. नजम खान के लिए fight fix कभी नहीं की. ARY वाला जो event था इसके अंदर, they looked from everywhere. अफगानिस्तान बोले yes. मैंने कहा कि okay, but अफगानिस्तान there was some, because अफगानिस्तान में नजम एक superstar है. Yeah. हर बन्नाई से लेकर जनरल तक सबको उसका पता भाई. बिल्कुल. ठीक है? अजमरे वज़ीरिस्तान का उसने गाना नारा लगा के जाके उसने अफगानियों को अंदर बाहर होकर आ गया था चारों को. Now they're like they have legit respect for him. Yeah. Yeah. ठीक है? और वो हमारे दोस्त हमारे लव है. ठीक है? तो इसको तो अब अफगानिस्तान में he's not going to fight for peanuts, is he? Yeah. So we was waiting on that opportunity, so we weren't fighting any Afghan. We said कहीं और से जहाँ से भी ले आना आप ले आओ. नहीं मिला कहीं से. They brought in Qudratullah. You know, there's massive difference. Yeah. We didn't say कि हाँ इसी को लाओ ताकि हम लोग मारे ये. No, why would I want that? Yeah. कम से कम 19-20 तो होना चाहिए ना. नहीं नीचे तो नहीं. सो उस बेस पे तो लाइक कब तक लड़ेंगे भाई आप इस तरह UFC भी जा सकते हैं. Yeah. मैं कल केज ले आऊँगा, अली को मैं लड़वा लूँगा, 20 फाइटर लड़ लेगा, 20 अली अब्दुल अजीज से हम बात कर लेंगे, 20 फायरिंग आउट ऑफ द लैंड्स ऑफ पंजाब पाकिस्तान, और जाना आ रहा है बर्गर ऑफ इस्लामाबाद. यस बर्गर है इस्लामाबाद. बर्गर इस्लामाबाद. You know, it's pretty easy. और इसको Yeah. लोग करते हैं, लोग avoid करते हैं. But again, yes, sorry I've taken a lot of time. नहीं, I'm Yes. loving it. But it's best होने के कुछ criterias हैं. Yeah. सिर्फ एक केज के अंदर जगह पे नहीं होना. अगर आप मिस्टर होना तो फिर at least चलो forget teaching ability, forget skill, forget everything. Just keep winning in mind. लेकिन उसका भी कोई होता है ना कि आप, me and you were not surface fans. चाहते हुए भी. हम चाहते हुए भी आंखें तू कर सकते हैं बंद कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो तो बड़े टफ कंपटीशन से लड़ा, उसने बड़ी अच्छी फाइट की है. I would say show me a good fight. And it's only going to be in the history like 4-5 years ago. Yeah. राहुल राजू को मैं क्यूडोस करता हूँ कि उसने अहमद मुश्तबा की हेल्प की.
पाकिस्तान में मशहूर होने में दोबारा, ठीक है. Not going to take anything away from him, he's working. But boy, if you're watching this, at least अपने लेवल के बच्चे के साथ फाइट कर ताकि पूरी दुनिया देखो लोग कहाँ हैं. मैंने ये ओपनली बोला है. The MMA community is saying it under the table, but some are saying it openly as well. But I know most people are talking about it. Yeah, Rahul Raju. And this is not to take a dig on Raju, कि Raju is a bad fighter. Yeah. But Raju के अलग लीग है, अहमद मुश्तबा एक अलग लीग का खिलाड़ी. इस तरह के लड़के सिर्फ ये होता है कि they're just rough around the edges, इनको थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है और इनके ऊपर सरपरस्ती चाहिए होता है. अगर एक क्लब से दूसरे क्लब से तीसरे क्लब से चौथे क्लब में जितना भी तू छलांग लगा ले, नहीं बंदा रिटेन कर सकता भाई. True. You gotta have at least one motherfucker who cares about you, gives a shit, who remembers shit for you. The kind of stuff that I do for him. Yeah. Or for Lumi or for anybody. Yeah. But most of him. I'm not saying it has to be me. I don't want to be that. Yeah. I have had my fair share of experience. मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ नहीं है. आप next level चीज़ है. समझ रहे हैं? तो आप but at least find a guy who gives a shit about you. तुम्हारी game put together करे. जब तेरे अंदर फटी हो तो हार रहा हो तो who should pull you out of the ditches. Yeah. बेशक तेरा कोच and pay him good. Make sure जिस जिम में जाता हूँ आगे फीस पे कर. फाइटर्स को सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही दूंगा. Pay the fee. Yeah. उसके अलावा कुछ भी नहीं. Let's end. All right, guys. This is by far the most intense and in-depth podcast I've ever done. And I was ready mentally. मैं सुबह से अपना को prepare करता. कोच एहतशाम आ रहे हैं, इनकी बातें समझनी है, सुननी है, टेढ़े सवाल पूछने हैं. और coach, nothing but respect and love for you. Thank you for coming on the podcast. Heather, for you as well. I wish you nothing but the best. And I know कि जब मैंने तुम्हें top 3, top 2, top 1 rankings, they don't matter. This is just content. But we all know who you are, what you're made of, तुम्हारी grit, तुम्हारी personality and everything, and where you come from and where you've reached. I wish you nothing but the best. And ladies and gentlemen, the 1-to-1 podcast is back officially. I'm going to be holding episodes every week now. We're going to be focusing on martial arts, boxing, Muay Thai, any combat sports in Pakistan. And please like and subscribe. Don't forget to follow Ehtisham Kareem. Don't forget to follow Heather Farman. Episode dropping very, very soon. Boom. Heather, ring the bell. Boom.